Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you to EduSolace. फ्रेंड्स, हमने नाउन के दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा था इन द फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन में हम लोग ने कंपाउंड नाउन एंड इट्स प्लूरल फॉर्म्स पढ़ा था। ये जितने भी सेशंस हैं ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंक, पीओ एंड एसएससी सीजीएल। ठीक है, but before starting with the session, I request you please subscribe our channel EduSolace because when you subscribe, it gives us motivation to keep making such free educational videos for you all. तो students आज हम पढ़ेंगे noun and its cases. ठीक है, so what is case? Actually case in noun tells about the position of a noun in that sentence, कि वो noun कैसे act कर रहा है in respect to the verb, whether it is acting as a subject of a verb or as an object of a verb. Okay, तो आज हम different cases of nouns discuss करने वाले हैं. Okay, so we are going to have a look on these 6 type of cases: nominative or subjective case, okay, accusative case, dative case, possessive case, vocative case and noun in apposition. Okay, so let's start one by one. So first is our nominative or subjective case. So as the word suggests, subjective, here the noun is used as a subject of a verb. Okay, so where the noun is used as a subject of a verb. And how will you find that a noun is a nominative case or not? So you have to ask a question what or who before the verb. Okay, if you get the answer, this means noun is in nominative case. तो क्या बोला मैंने, अगर आप verb से पूछोगे क्या, ठीक है, व्हाट क्या और हु यानी कौन, और आपको उसका आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब नाउन आपका नॉमिनेटिव केस में है. ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. जॉन इज वॉशिंग द क्लोथ्स. ठीक है, अब देखिए वॉश, इस वॉशिंग क्या है, आपका वर्ब है. इसमें क्या बोला मैंने, वर्ब से हमें पूछना है व्हाट और हु. अगर हमें रिप्लाई मिलता है तो वो नाउन आपका सब्जेक्टिव केस में है. So who is washing the clothes? John is washing the clothes, right? So John is your noun in nominative case. और clothes किसको wash कर रहा है, clothes, so it's a noun in objective case, जो अभी हम देखेंगे, इसके बाद वही डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी हम जस्ट nominative case पे रहते हैं स्टिक. So who is washing the clothes, हमने verb से पूछा क्वेश्चन who, हमें रिप्लाई मिल गया John. So John is your noun in nominative और subjective case. Sanju called the doctor. Who called the doctor? We got the answer Sanju. So Sanju is your noun in nominative case. The books are lying on a desk. What are lying on a desk? ठीक है, अब जब नॉन लिविंग थिंग है तो आपको what में मिलता है उसका, ठीक है, आंसर. अगर लिविंग थिंग है तो आपने who पूछा. For non living things you have to ask your question in what form. So what are lying on a desk? The books. So the books is your noun in subjective case. Meera is talking to John. Who is talking to John? Meera. So again, Meera is your noun in nominative case. Okay students, I hope ये बहुत easy था और आपको एकदम अच्छे से clear हो गया. ठीक है, moving on to our second case, which is accusative or objective case. So here, as the name suggests, again the noun acts as an object of a verb. Noun acts as an object of a verb. ठीक है, now here what you have to ask, now here you have to ask what or whom after the verb. Okay, make a question with what or whom after the verb. वहां पे आपने before the verb पूछा था, कौन ये काम कर रहा है, क्या ये काम कर रहा है. ठीक है, कौन, यहाँ पे क्या या किसको. ठीक है, यहाँ पे क्या पूछना है अपने वर्ब से, क्या या किसको. जॉन, सेम मैंने एग्जाम्पल्स लिए इसीलिए मैंने सेम एग्जाम्पल्स लिए. देखिए, जॉन इज वॉशिंग द क्लोथ्स, तो जॉन क्या वॉश कर रहा है, क्या, व्हाट. आपने वर्ब के बाद पूछा जॉन क्या वॉश कर रहा है, क्लोथ्स को वॉश कर रहा है. क्लोथ्स इज योर नाउन इन ऑब्जेक्टिव केस. संजू कॉल्ड द डॉक्टर. संजू ने किसको बुलाया, whom डिड संजय कॉल, तो संजय कॉल्ड द डॉक्टर. whom का रिप्लाई मिल गया आपको. द बुक्स आर लाइंग ऑन अ डेस्क. सो व्हाट आर लाइंग ऑन अ डेस्क, books are lying on a desk, so that books is in subjective case. But books are lying on what, lying on what, a desk. So a desk is your noun in objective case. समझ रहे हैं आप.
अब देखिए इसमें एक कैच है जो इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं। देखिए बुक्स आपका क्या है, द बुक्स सब्जेक्ट है, आर लाइंग क्या है, आर लाइंग आपका वर्ब है, ऑन क्या है आपका, ऑन इज योर प्रेपोजिशन। अगर आपने यहां पर आपको ये रिप्लाई मिल जाता बुक्स आर लाइंग व्हाट, तो क्या आपको इसका आंसर मिल रहा है द बुक्स आर लाइंग व्हाट? नहीं मिल रहा है। आपको क्या क्वेश्चन पूछना पड़ा, द बुक्स आर लाइंग ऑन व्हाट। ओके, तो ये इसको याद रखिएगा। इस केस में डेस्क क्या है, डेस्क इज नॉट ए और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। डेस्क किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है। ओके, सो हेयर डेस्क इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब लाइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जानना, क्योंकि इससे रिलेटेड जब हम और एडवांस लेवल पे मूव करेंगे तब हम आपको यही चीज बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट का वर्ब है कि प्रेपोजिशन का वर्ब है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे द बुक सब्जेक्ट है और उसका वर्ब है आर लाइंग। ठीक है, अब द बुक्स आर लाइंग व्हाट पे आपको आंसर नहीं मिला, आपको आंसर मिला द बुक्स आर लाइंग ऑन व्हाट, प्रेपोजिशन आपको यूज करना पड़ा। सो हेयर अ डेस्क इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब अ लाइंग। ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो आपको समझ में आना चाहिए। अगेन मीरा इज टॉकिंग टू जॉन। अब इसमें आप अगर पूछो मीरा इज टॉकिंग हुम, सो आर यू गेटिंग एनी आंसर? नो, मीरा इज टॉकिंग हुम बहुत ही वेग क्वेश्चन है। आपको क्या पूछना पड़ेगा, मीरा इज टॉकिंग टू हुम मीरा इज टॉकिंग, टू आपको लगाना पड़ रहा है। सो अगेन टू इज योर प्रेपोजिशन। सो व्हेन यू कनेक्ट दिस टू विद मीरा, व्हाट, टू हुम द मीरा इज टॉकिंग या मीरा इज टॉकिंग टू हुम, then only you are getting in reply John. So here also John, though John is your noun in objective case, but it is not a object to this verb is talking. ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टू का। ओके, तो ये कुछ थोड़े एडवांस तरीके के जो आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये वर्ब आपका सब्जेक्ट का है। ठीक है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसमें आप देखो जॉन इज वॉशिंग व्हाट, आपको तुरंत आपको डायरेक्ट में आंसर मिल गया, आपको ऑन अबव टू कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना पड़ा। तो इसमें ये नॉर्मल है, ये आपका सब्जेक्ट है, जॉन इज वॉशिंग आपका वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है द क्लोथ्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बट इन दोनों एग्जाम्पल्स में ऐसा नहीं है। द बुक्स आपका सब्जेक्ट है, आर लाइंग आपका वर्ब है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। इसके बाद आपका प्रेपोजिशन आ गया है और अ डेस्क आपका ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का। ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि इधर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑफ ए वर्ब, इसमें ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बट जो अभी हम लोग जिस पे कॉन्सेंट्रेट करें वो क्या चीज है कि ऑब्जेक्टिव केस नाउन, तो वो फिर इजी है फाइंड आउट करना कि द बुक्स आर लाइंग ऑन व्हाट आपने पूछा तो क्या आंसर मिला, अ डेस्क। सो डेस्क क्या है आपका नाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। मीरा इज टॉकिंग टू हुम, तो अगेन जॉन इज योर नाउन इन एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो मैंने बेसिक भी चीज आपको समझाई और थोड़ी सी एडवांस चीज भी समझाई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डेटिव केस। डेटिव केस क्या है, हियर नाउन एक्ट्स एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। उधर में आपने देखा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, जब एक ही ऑब्जेक्ट था तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। इधर में क्या है, इधर में एक सब्जेक्ट है और फिर दो ऑब्जेक्ट्स है। सो व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, one will act as a direct object and other will act as a indirect object. So in most of the cases the indirect objects will come immediately after the subject. ठीक है, अब indirect objects कौन से हुए, are those to whom or for whom the verb is done. ठीक है, जिसके लिए ये काम किया गया, ठीक है, वो होते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए ये किया गया या जिससे किया गया। देखिए द टीचर गेव द स्टूडेंट अ बुक, तो टीचर ने स्टूडेंट को बुक दी। द टीचर तो आपका क्या है, नाउन इन सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है। गेव क्या है, आपका वर्ब है। और इधर क्या क्या दो ऑब्जेक्ट है, एक तो गेव द स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है और एक बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो जो स्टूडेंट है वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ज्यादातर इमीडिएटली यूज होगा वर्ब के।
ठीक है, किसके लिए ये बुक दी गई है? स्टूडेंट के लिए दी गई है ना, तो इसलिए टू whom दिस बुक हैज बीन गिवन, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टीचर पहले क्या करेगी? पहले तो बुक लाएगी फिर स्टूडेंट को देगी, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? बुक लाने का फिर स्टूडेंट को मिली। सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, द टीचर गेव अ बुक टू द स्टूडेंट, द टीचर गेव अ बुक टू द स्टूडेंट, तो पहले वो बुक लाई फिर स्टूडेंट को दिया, तो स्टूडेंट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या चीज दे रही है? बुक, तो बुक इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बॉट माई मदर सम एप्पल्स, इट इज इक्वल टू सेइंग आई बॉट सम एप्पल्स फॉर माई मदर, तो मैं माँ के लिए क्या लाई? फॉर एप्पल्स लाई। किसके लिए लाई? मदर के लिए लाई। किसके लिए काम हो रहा है? टू हुम, वो क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डेटिव केस में। सो आई आपका सब्जेक्ट है, बॉट क्या है? आपका वर्ब है, माई मदर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी डेटिव केस वाला है, और सम एप्पल्स आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, हो रहा है क्लियर? ही टोल्ड जॉन अबाउट हिज प्लान, इसको आप कैसे भी बोल सकते हो, ही टोल्ड अबाउट हिज प्लान टू जॉन, तो प्लान के बारे में जॉन को बताया। किसको बताया? जॉन को। तो जॉन क्या है? डेटिव केस में है आपका इनडायरेक्ट, और प्लान क्या है? प्लान आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ही आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड आपका वर्ब है। ठीक है, इसलिए सारी ऐसे आप जब सारी स्पीच सीख जाओगे तो आप पूरे सेंटेंस में हर एक एक स्पीच लगाना शुरू कर दोगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, आपको पूरा इंग्लिश एकदम क्लियर करवा देंगे हम। ठीक है, विल यू डू अस अ फेवर, इसको और कैसे बोल सकते हो? विल यू डू अ फेवर फॉर अस, किसके लिए काम हो रहा है? अब हमारे लिए काम हो रहा है, अस के लिए। तो अस क्या है? अस इज योर नाउन इन डेटिव केस, और फेवर क्या है? फेवर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डेटिव केस क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो अस आपका डेटिव या इनडायरेक्ट केस में नाउन। यू, यू आपका सब्जेक्ट है, डू आपका वर्ब है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया पूरा? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पॉजेसिव और जेनेटिव केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉजेसिव केस शोज द पोजेशन, ओनरशिप, अथॉरिटी, ओरिजिन ऑफ अ नाउन, किसी चीज की ओनरशिप बताता है, या वो चीज कहां से निकली है, किसकी है। ठीक है, उसकी अथॉरिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राम्स बैग, किसका बैग है? राम का, भाई राम की ओनरशिप है, सो राम इज योर नाउन इन पॉजेसिव केस। देयर इज अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस, ठीक है, बच्चों, अब देखिए चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड मतलब ये नहीं हुआ कि इस प्ले ग्राउंड को चिल्ड्रन लोगों ने खरीद लिया है तो उसकी ओनरशिप है, नहीं, बच्चों के खेलने के लिए है। ठीक है, तो भले ही उनकी ओनरशिप वैसे नहीं है, उन्होंने खरीद नहीं रखा, उनके नाम पे नहीं है, बट उनके लिए है, तो वो भी एक तरीके से पोजेशन शो करता है। सो देयर इज अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, चिल्ड्रंस इज योर नाउन इन योर पॉजेसिव केस। आई लव टू रीड विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री, ठीक है, तो पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सो विलियम वर्ड्सवर्थ इज योर नाउन इन पॉजेसिव केस। Now there are many rules related to possessive case and I will discuss one by one. When noun is in plural and ends in s, possessive case is formed by adding only apostrophe. तो क्या बोला मैंने? अगर किसी भी चीज का प्लूरल है, जैसे दिस इज गर्ल्स स्कूल, ये क्या है? लड़कियों का स्कूल है, किसी लड़की का स्कूल नहीं है, ओनरशिप नहीं बता रहे, जैसे वो चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड था वैसे ही लड़कियों का स्कूल है। ठीक है, गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है। ठीक है, तो गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स क्या है आपका? गर्ल का देखिए, गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स, तो जब हमें प्लूरल का पोजेशन दिखाना है, पॉजेसिव फॉर्म दिखाना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे थे? एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा रहे थे। ठीक है, अब जैसे हमें सिर्फ गर्ल का पोजेशन दिखाना है तो हम लोग सिर्फ दिखाएंगे, एक लड़की के बारे में बताना है तो गर्ल एपोस्ट्रोफी एस। बट अगर हमें किसी प्लूरल वर्ड का पोजेशन दिखाना है तो सिर्फ हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है, उसके बाद हमें कोई भी एस वर्ड नहीं यूज करना है। सो दिस इज गर्ल्स स्कूल, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस आ रहा है। बट अगेन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जैसे अभी ये हमने देखा चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन क्या होता है? एक्चुअली चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, और ये क्या होता है? एस से खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में एस नहीं आता, इसलिए हमें इसका पोजीशन दिखाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे।
बट जैसे सपोज बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल क्या होता है? बॉक्सेस। तो इसमें एंड में एस आ रहा है ऑलरेडी, तो इसका हमें पॉजेसिव फॉर्म बनाना है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। समझ गए आप क्या डिफरेंस है? ओके, मूविंग ऑन। The letter S is omitted in few words where too many hissing sounds come together. तो जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप प्रोनाउंस करोगे तो बहुत सारी ऐसे ऐसा आता है साउंड, ठीक है? नागिन शो देखा है आपने? उसी तरीके से करती है, वैसे ये हिसिंग साउंड, इसीलिए बोलते हैं ना हिस। तो अगर बहुत सारे ऐसे हिसिंग साउंड आ रहे हैं तो आपको उसके आगे एस ओमिट कर देना है, नहीं लगाना है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जस्टिस। अब बोलिए जस्टिस, हिसिंग साउंड आ रही है? आ रही है। तो उसमें अगर हमें किसी का पोजीशन दिखाना है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, कोई एस नहीं लगाएंगे। देखिए जैसे हमें बोलना था फॉर जस्टिस सेक, तो जस्टिस में हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिया, कोई एस नहीं यूज किया। फॉर कंसाइंस सेक सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिया। गुडनेस सेक, मोजेस लॉ, ठीक है? वैसे ही जीसस फेवरेट, जीसस सेक, जीसस एस हिसिंग साउंड आ रही है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है? ये है। नेक्स्ट रूल क्या है? व्हेन अ नाउन और अ टाइटल हैज सेवरल वर्ड्स द पॉजेसिव साइन इज अटैच्ड टू द लास्ट वर्ड ऑफ द नाउन। तो क्या है, अगर कई सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसको मतलब नाउन के, ठीक है, तो क्या करना है हमें, जो सिर्फ लास्ट नाउन है उसके आगे हमें सिर्फ पोजेशन दिखाना है, तो सिर्फ लास्ट नाउन में अपना अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, उसके पहले का जो नाउन है उसमें नहीं लगाना। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स क्राउन या द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स स्पीच। तो क्या क्वीन ऑफ इंग्लैंड इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, तो अब हम क्या द क्वींस ऑफ इंग्लैंड्स क्राउन ऐसे नहीं लिखना है कि भाई, ठीक है भाई, ये हम बोल रहे हैं कि भाई इंग्लैंड की महारानी का ताज, इंग्लैंड की महारानी का क्राउन, तो भाई बस जो बाद में नाउन यूज हुआ है उसी में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, क्वींस में लगाने की नहीं जरूरत है, सिर्फ लास्ट नाउन में लगा दीजिए। सिमिलरली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, किसकी स्पीच? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब हमें द प्राइम मिनिस्टर्स होता सिर्फ प्राइम मिनिस्टर स्पीच, तो प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच हो जाता। ऑफ इंडिया अगर नहीं लगा होता सपोज, तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिख देते, प्राइम मिनिस्टर्स, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा के स्पीच, वो सही हो जाता अपना। बट इसको बड़ा कर दिया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशियाज स्पीच, ठीक है? तो जो लास्ट नाउन होगा, कई सारे टाइटल्स यूज हो रहे हैं, लास्ट नाउन होगा उसमें सिर्फ पॉजेसिव फॉर्म दिखाना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन द पॉजेसिव साइन इज पुट आफ्टर द लेटर नाउन ओनली, ठीक है? एपोजिशन मतलब एक नाउन है, अभी हम पूरा इसका एपोजिशन केस भी करेंगे, एक नाउन है उसी के बारे में वो दूसरा नाउन भी यूज हो रहा है, उसी की क्वालिटी बता रहा है, वो कौन है एक्चुअली। देखिए दिस इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट्स बुक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन था? पोएट्स था। तो अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि दिस इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट्स, बहुत से बच्चे ऐसे कराते हैं बुक, इस तरीके से एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन दिया रहता है, तो क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन था? पोएट था, और ये किसकी? उसी की किताब है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या ही ओनरशिप है, उसी का ही पोजेशन है, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बाद उसी के बारे में ही बता रहे, वो कौन था? पोएट था, तो उसी के ही अटैच्ड ये नाउन है, ठीक है? तो जो दूसरा नाउन होगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जैसे अभी वो टाइटल वाला केस देखा था वैसे ही इसमें भी आप समझ लीजिए, ठीक है? दिस इज एम.एफ. हुसैन द ग्रेट आर्टिस्ट पेंटिंग, एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है, बट हम एम.एफ. हुसैन में नहीं एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे, क्योंकि इसमें आगे आ गया, सिर्फ ये होता दिस इज एम.एफ. हुसैन पेंटिंग, तो इसमें हो जाता दिस इज एम.एफ. फिर हम लोग हुसैन में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते, बट इसमें ये कंटिन्यू हुआ इसी नाउन के बारे में और ये अपने को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सेम ही नाउन अगर कंटिन्यू होकर और इन्फॉर्मेशन देता है कॉमा लगा के अपोजिशन फॉर्म में, तो हम लोग जो सेकेंड नाउन होता है उसमें पॉजेसिव फॉर्म यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पॉजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर नाउन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए, टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज राम एंड सीता's कार। इसका क्या मतलब हुआ? राम और सीता की मिलाकर एक सिंगल कार है।
दोनों की कंबाइंड एक कार है, तो इसमें क्या करेंगे, जो दूसरा नाउन है उसके आगे पॉजेसिव फॉर्म दिखाएंगे अपोस्ट्रोफी एस लगा के। दिस इज सलमान एंड सलीम्स फैमिली, दोनों की एक फैमिली है, सेम फैमिली है, ठीक है, दोनों नाउन एक ही ग्रुप को यूज कर बिलोंग कर रहे हैं। तो दूसरे नाउन में अगर सलमान और सलीम सपोज फ्रेंड्स होते, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती, तो उसमें क्या चेंजेस आते, एक तो ये फैमिली नहीं होती, दो अलग फैमिली होती, तो ये आपका प्लूरल फैमिलीज हो जाता। और फिर उस केस में आप क्या करते, सलमान में भी आप पोजेशन दिखाते अपोस्ट्रोफी एस लगा के, और सलीम्स में भी दिखाते, तो आप क्या बोलते हैं, ये पूरा प्लूरल हो जाता, दीज आर सलमान्स एंड सलीम्स फैमिलीज। अगर सलमान और सलीम की अलग अलग फैमिली होती तो दोनों का अलग अलग पोजेशन शो करते, बट अगर दोनों की कंबाइंड, दोनों की सेम एक ही फैमिली है, तो सिर्फ बाद वाले नाउन में पॉजेसिव फॉर्म यूज करेंगे। ओके, वैसे ही राम और सीता की अलग अलग कार्स होती तो जाता दीज आर राम्स एंड सीतास कार्स। कैसे हो जाता, अगर अलग अलग होती, दीज आर राम्स एंड सीतास कार्स, ठीक है, सब चीज प्लूरल में आ जाती है और दोनों में पॉजेसिव फॉर्म यूज हो जाता है। देखा आपने, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। यही हमारा नेक्स्ट रूल है, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लाई सेपरेट पोजेशन, द पॉजेसिव साइन इज पुट अलोंगसाइड बोथ नाउन्स। अगर सेपरेट सेपरेट पोजेशन है, जैसे अभी हमने देखे दोनों की अलग अलग गाड़ी है, वैसे ही आई लव टू रीड चार्ल्स एंड विलियम्स पोएम्स, तो भाई चार्ल्स डिकेन अलग था, विलियम वर्ड्सवर्थ अलग था, दोनों की अलग अलग पोइट्री थी, कंबाइंड एक पोइट्री तो थी नहीं, तो दोनों की अलग अलग पोइट्री थी, इसलिए चार्ल्स में भी अपोस्ट्रोफी एस आया, विलियम्स में भी आया। और वो रूल जो हमने पढ़े वो इधर भी चलेंगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के चार्ल्स वर्ड लिया। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एस आता है, इसके नाम में ऑलरेडी एस है, इसलिए हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया, जो अभी हमने रूल पढ़ा था। अब हमने इसमें ऐसे नहीं किया, दो बार एस नहीं लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा था जैसे गर्ल्स है, बॉयज है, अगर आखिरी में एस लग रहा है, प्लूरल फॉर्म में भी अगर आखिरी में एस लग रहा है, या सिंगुलर वर्ड में भी अगर आखिरी में एस लग रहा है, तो अपन दोबारा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने जानबूझ के चार्ल्स लिया था कि वो रूल भी अपना अप्लाई हो जाए। फिर से चार्ल्स एस में हो रहा है खत्म, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाए, चार्ल्स एंड विलियम्स पोएम्स, ठीक है। राजूज एंड शीनास पासपोर्ट्स वर लॉस्ट, दोनों के अलग अलग पासपोर्ट्स होंगे, सेम तो नहीं हो सकते, तो दोनों में पॉजेसिव आया है केस, राजूज एंड शीनास पासपोर्ट्स वर लॉस्ट, वर्क अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आया। नाउ नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब बहुत बार पूछा गया है बैंक पीओ वगैरह में, तो पॉजेसिव साइन इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये जो पॉजेसिव केस है वो सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। माई कार सीट हैज ब्रोकन, तो ये नहीं बोल सकते, गाड़ी की सीट टूट गई अगर हमें ये बोलना है तो भी ठीक है, लेकिन द सीट ऑफ माई कार हैज ब्रोकन सही है, बट गाड़ी का पोजेशन नहीं है भाई, गाड़ी तो अपनी ही है, अपना ही पोजेशन होता है लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी पॉजेसिव केस यूज नहीं किया जा सकता। माई हाउस रूफ इज लीकिंग, गलत है, हाउस की रूफ में पॉजेसिव केस नहीं यूज होगा, हाउस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, द रूफ ऑफ माई हाउस इज लीकिंग और नीड्स रिपेयर, कुछ भी बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ कुछ आप देखोगे वहां पर जो नॉन लिविंग भी आपको लगेगा बट फिर भी पॉजेसिव केस यूज हुआ, वो कौन से होते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एंड कॉमन फ्रेजेस। जब हमने नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई किया, मतलब उसे एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं हम, ठीक है, जैसे माई डोर्स कर्टेन्स आर फ्लोइंग इन द एयर, ये जैसे पोयम में लिखते हैं पोएट लोग, तो अब उसमें मतलब डोर्स कर्टेन या मैं कुछ भी इस तरीके से, जब वो अगर उसको एज ए लिविंग ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर अपोस्ट्रोफी एस यूज हो सकता है। जब नॉन लिविंग को हम लोग जान दे देते हैं अपनी कविताओं के थ्रू, तब उसमें अपोस्ट्रोफी यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे नेचर्स लॉ, अब भाई नेचर का कोई लॉ वैसे थोड़ी ना होता है, लेकिन हम इसको ऐसा मानते हैं कि भाई नेचर का जो लॉ है, प्राकृतिक जो भी नियम है, उसकी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बोलते हैं ऐसे, तो नेचर्स लॉ एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन हम लोग नेचर को एक तरीके से पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ड्यूटी इज कॉल, ड्यूटी कोई असली में इंसान नहीं है जो बुलाती है,
लेकिन इसको ऐसे कॉमन फ्रेज हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कि हाँ भाई ड्यूटी आपको बुला रही है, आपको जाना पड़ेगा। फॉर्च्यून्स फेवरेट, ये फ्रेजेस है कुछ। एट ए स्टोन्स थ्रो, फॉर ए मर्सी सेक, टिल टू अ हार्ट्स कंटेंट, जब तक दिल खुश नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये सब जो कॉमन फ्रेजेस हैं जो पोएट्री वगैरह में यूज होते आ रहे हैं, या जहां हम इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली नहीं यूज करेंगे। जैसे हमें बोलना है माई टेबल्स लेग आर ब्रोकन, तो वो गलत हो जाएगा। मेरे द लेग्स ऑफ माई टेबल इज ब्रोकन बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉसेसिव साइन कहाँ यूज कर सकते हैं? दोज नाउन्स विच डिनोट्स प्लेस, टाइम, मेजरमेंट और वेट। अगर प्लेस, टाइम, मेजरमेंट और वेट बताते हैं तो उन नॉन लिविंग जो लगते हैं उनके साथ आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लिविंग में तो सभी के साथ यूज कर सकते हो, नॉन लिविंग के लिए ये सब एक्सेप्शंस है। ओके, अब जैसे प्लेस, तो जैसे मुंबईज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, दिल्लीज पॉल्यूशन। ठीक है, अ ईयर्स डिले, अ मंथ्स डिले, अ वीक्स हॉलीडे, टाइम हो गया। अ फुट्स लेंथ, मेजरमेंट बता रहा है। अ पाउंड्स वेट, अ टन्स वेट। ठीक है, तो ये जो लेंथ, वेट, प्लेस या टाइम ये बताते हैं, उनमें अपॉस्ट्रोफी यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं हमारे वोकेटिव। वो तो बहुत ही ईजी है। वोकेटिव केस क्या होता है? वो एकदम तुरंत आपको पहचान में आ जाएगा नाउन में। जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, बुला रहे हो, तो जिस पर्सन को आप बुलाते हो वो आपका क्या होता है? नाउन इन वोकेटिव केस। When a noun is addressed or called out in a sentence, then that noun is said to be in vocative case. It sets the identity of the spoken party or listener. भाई जिसको बुलाया जा रहा है, जो सुन रहा है वो। ठीक है, जैसे मिस्टर शर्मा, योर फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। इसमें हमने क्या बोला? हम मिस्टर शर्मा को बोल रहे हैं कि आपका फ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा को हम बुला रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो मिस्टर शर्मा इज योर नाउन इन वोकेटिव केस। आई नो योर प्लान संजय, मुझे संजय तुम्हारा प्लान पता है। तो इसमें देखिए कॉमा आना बहुत जरूरी है, वरना मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई नो योर प्लान संजय, हम संजय से बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारा प्लान पता है, तो संजय है नाउन इन वोकेटिव केस। वेयर हैव यू बीन जॉन, तुम कहाँ थे आज इतने दिन, तो जॉन हो गया नाउन इन वोकेटिव केस। यस राजू, यू कैन डू इट, इधर दो कॉमा है, यस राजू, तो राजू आपका नाउन इन वोकेटिव केस। हाँ राजू तुम कर सकते हो, नो राजू यू कैन नॉट सिट हेयर। ठीक है, तो जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत इजी है पहचानना, वो हो जाते हैं आपके नाउन्स इन वोकेटिव केस। है ना स्टूडेंट्स, इजी। चलिए ये नेक्स्ट आ जाते हैं अपने लास्ट केस पे, नाउन्स इन एपोजिशन के। एपोजिशन क्या होता है? जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन लिखा हो। जैसे अभी हमने देखा MF हुसैन कॉमा द पेंटर, तो क्या था? एपोजिशन में था, एक के बगल में एक दूसरा नाउन रखा था। तो जो दूसरा नाउन होता है उसको क्या कहते हैं? इन एपोजिशन टू द फर्स्ट नाउन। देखिए एग्जाम्पल, जॉन द पोएट वॉज ऑल्सो अ पेंटर। जॉन जो पोएट था वो पेंटर भी था। तो इधर जो जॉन द पोएट की बात हो रही है, ये किधर है? ये नाउन इन एपोजिशन है, और ये किस में यूज हुआ है? सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है। आप ये पूछ सकते हो हु वॉज ऑल्सो अ पेंटर, तो आपको आंसर मिलेगा जॉन जो पोएट था, और जो द पोएट है जॉन, ये नाउन इन एपोजिशन केस है, जॉन के बारे में ही और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई वेंट टू सी मिस्टर जॉन द म्यूजिशियन, अब ये जॉन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिली? द म्यूजिशियन, तो ये नाउन इन एपोजिशन केस है। और दूसरा ये क्या है? आप इसको कैसे पूछ सकते हो? whom you went to see, whom जब आपने बोला तो नाउन इन ऑब्जेक्टिव केस का आंसर मिलता है, जो अभी हम पढ़ के आए। who जब पूछते हैं तो नाउन इन सब्जेक्टिव का मिलता है, तो ये सब्जेक्टिव में था जॉन, इधर whom you went to see, whom का आंसर मिल रहा है, तो इधर ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है मिस्टर जॉन। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा कनेक्ट भी करवाते जा रहे हैं जो अभी पढ़ा है। और साउथ में नाउन इन एपोजिशन तो मैंने अंडरलाइन कर ही दिया है। आई वेंट टू सी मिस्टर जॉन, जॉन के बारे में बात हो रही है, जॉन कौन है? द म्यूजिशियन, सो द म्यूजिशियन इज अ नाउन इन एपोजिशन केस। गणेश द डांसर्स स्टेप्स आर इन ट्रेंड नाउअडेज। गणेश को कौन है? डांसर है जिसके स्टेप्स ट्रेंड में है आजकल। ठीक है, तो गणेश के बारे में बात हो रही है, गणेश के बारे में क्या बात हुई? वो उसके बारे में हमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली? वो द डांसर है, तो द डांसर इज अ नाउन इन एपोजिशन केस। और साथ में
ये और किसका काम कर रहा है? गणेश द डांसर्स पॉजेसिव का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा, आपने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव भी निकाला और नाउन इन एपोजिशन भी समझा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ना ऐसे ही पढ़ना है, जो पढ़ते जा रहे हैं उसको कनेक्ट करते चलना है। इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से इस तरीके के एग्जाम्पल्स रखे कि आपका सब पूरी क्लास एक दूसरे से कनेक्ट होती चले। ठीक है, चलिए ये सेशन हमारा आज यहीं पे ओवर होता है। इससे इंपॉर्टेंट अब हम क्वेश्चंस पढ़ते एक एक करके और देखते हैं इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कहाँ पर एरर है। चलिए पहला देखते हैं, हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर। कहाँ पर एरर लग रही है आपको? इसमें एरर है। क्यों? अभी हमने देखा हाउस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके आगे पॉजेसिव केस नहीं आता। इसको कैसे सही करेंगे आप? हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ ए हाउस। द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस नॉन लिविंग है, इसके साथ पॉजेसिव केस नहीं आएगा। 7 days जर्नी इज अ वीक जर्नी। इसमें कहां पे एरर लग रही है? 7 days जर्नी सही है। अब ये देखिए, हमने पहली की क्लास में पढ़ा था, ये पूरी यूनिट है, हमने नाउन और यूनिट समझा था। पूरी यूनिट है, एक एज आएगा, सही है, अ आएगा। वीक जर्नी क्या? जैसे मंथ्स डिले, ईयर्स डिले, वीक्स, एक हफ्ते की जर्नी है ना, तो वीक्स होएगा इसमें। ओके, एरर कहाँ है? वीक में। प्लीज टेल द ट्रूथ फॉर जीसस सेक। कहां पे एरर है? जीसस में एरर है। हिसिंग साउंड आ रही है? जीसस, जस्टिस, मोसेस, मर्सीस, जीसस और बस एक एपोस्ट्रोफी। देयर इज अ बॉयज कॉलेज नियर माई हाउस। क्या एरर है? इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को एरर ही नहीं दिखती है। देयर इज अ बॉयज कॉलेज, कहते हैं मैम सब तो सही है। नहीं, ये किसी लड़के के कॉलेज की नहीं बात हो रही कि किसी लड़के ने कॉलेज खरीद रखा। अभी जैसे हमने बताया, क्या आएगा? बॉयज, लड़कों का कॉलेज है, तो मतलब लड़कों का प्लूरल हो गया, और प्लूरल में एस आया तो एपोस्ट्रोफी है, सिर्फ ऐसे। इसको करेक्ट करके ऐसे लिखेंगे, बॉयज कॉलेज। यू शुड कैरी आउट योर प्रिंसिपल ऑर्डर्स। कहाँ एरर है? इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल के ऑर्डर आपको फॉलो करने हैं ना, तो प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स। ओके, ही एट फूड एट द बुफे टू हिज हार्ट कंटेंट। कहां पे गलती है? ही एट फूड भी सही है, एट द बुफे भी ठीक है, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। जैसे ये क्या हो गया? कॉमन फ्रेज हो गया। जैसे हिज हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो टू माई हाउस। मेरे घर से सिर्फ एक जितना दूरी पर वो है, पत्थर फेंको उतनी दूरी पे उसका घर है। वैसे ही ही एट फूड एट द बुफे टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एकदम पूरा दिल भर के उसने खाया जब तक उस खुश नहीं हो गया, तो हार्ट्स कंटेंट। इसमें ज्यादातर आप देखोगे एरर क्वेश्चंस पॉजेसिव फॉर्म से ज्यादा आएंगे। दिस इज स्मिथ्स द पोएट हाउस। कहां गलती है इसमें? ये एरर है। स्मिथ के बारे में अपोजिशन यूज हुआ है, उसके बारे में बताया जा रहा है द पोएट, तो क्या होगा? दिस इज स्मिथ ऐसे ही रहेगा और द पोएट्स हो जाएगा हाउस, नाउन इन अपोजिशन फॉर्म। ठीक है, बात के वाले में यूज होगा अपोस्ट्रोफी। द कपल रोहन्स एंड शीलास रूम वॉज वेरी डर्टी। देखिए, अब इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने कपल दे दिया, कपल लिख दिया, तो ये क्लियर हो गया कि भाई रोहन और शीला का एक ही रूम होगा। और दूसरा मैंने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है ना, तो फिर जब दोनों का एक ही रूम है तो दोनों की दो बार पोजेशन नहीं शो होगा, गलत है। क्या लिखेंगे हम लोग? द कपल रोहन एंड शीलाज रूम। सिर्फ बाद वाले में पॉजेसिव केस यूज होगा जब दोनों का कंबाइंड पोजेशन है, दूसरे का फर्स्ट वाले का पॉजेसिव फॉर्म नहीं आएगा। 9th देखिए, रोनित एंड जॉन्स पेट्स आर क्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉजेसिव फॉर्म वाले। रोनित एंड जॉन्स पेट्स आर क्यूट में दोनों के अलग अलग पेट्स हैं, तभी पेट्स आया, आर आया।
तो दोनों की जब दो पेट्स की बात हो रही है तो दोनों का अलग पोजीशन दिखाइए। तो इसका क्या होगा करेक्ट, रोनिट्स का अलग आएगा एपोस्ट्रॉफी लगा के, एंड जॉन्स का अलग आएगा। पेट्स आर क्यूट। ओके, लास्ट देखिए, शीलाज द सिंगर सिंग स्वीटली। बताइए क्या एरर है? शीलाज में एरर है, द सिंगर्स भी नहीं होगा, इसमें कुछ पॉजेसिव हम लोग दिखाई नहीं रहे हैं, तो क्यों पॉजेसिव यूज करना है नाउन? सिर्फ इसको नॉर्मल एपोजिशन में यूज करना है हमें बस। शीला द सिंगर, इसमें कुछ पॉजेसिव फॉर्म है ही नहीं। द सिंगर सॉन्ग्स होता तो इसमें हम लोग द सिंगर में लगाते, पहले वाले में तो लगाना ही नहीं है, और इसमें कोई पॉजेसिव फॉर्म यूज ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ द सिंगर उसके बारे में ही बता रहे हैं, सिंग्स स्वीटली। शीला द सिंगर सॉन्ग्स आर फेमस, तो उसमें द सिंगर्स सॉन्ग्स आ जाता, ठीक है। और इसमें तो कुछ भी तरीके का पोजीशन है ही नहीं, तो सिर्फ नाउन और एपोजिशन लगाना है, सिंग स्वीटली। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहीं पे ओवर होता है हमारा नाउन का सेशन। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। इसी के साथ हमारा नाउन पूरा कंप्लीट होता है। जिन्होंने नाउन पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अच्छे से उसमें सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल। मैंने दोनों की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वो जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।